Hello, am I audible? Hello, can you hear me? Hamna, Mridula, can you hear me? Good evening, ma'am. Good evening. Sorry, we were waiting for you. I think let's wait for 2-3 minutes more for Miraj to come. Okay, I think he's not coming. So let's start. So which question we did yesterday? Third or fourth? Ma'am, fourth. Fourth question. Okay, so today we have to start from question number 5, right? So shall we start? Okay, what does it say? That show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. Okay, so this question is exactly opposite of question number 4, right? Now read. Okay, see question number 4. So question number 4 में बोला था कि show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. ठीक है? So it was already given that it was a square. And in this fifth question आपको ये already दिया है कि diagonals equal है, एक दूसरे को bisect करते हैं, right angle पे भी करते हैं और आपको show करना है कि ये square है. Fine? Please Yes. unmute your mic, both of you. Yes. So this question is just the reverse of question number 4. Okay, let's do it. Okay, so we were doing it here yesterday. All right, so question number 5. Okay, let me make a figure. तो हमको स्क्वायर शो करना है तो हम एक स्क्वायर के ही फिगर बना लेते हैं बट अभी ये प्रूव नहीं है ओके वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर so because it's given information about the diagonals also, so I'm drawing 2 diagonals. Okay, so let this be A, B, C and D. Now what is given to you first of all? Okay, what is given here, Hamna? Ma'am, that AO is equal to C. Okay, first of all, it is given that ABCD is a quadrilateral. Okay, Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि स्क्वायर है या पैरेललोग्राम भी नहीं बोला है. ABCD is a quadrilateral. Only this much is given. Okay. Now what is given? That first thing is given, right? Second information which is given that diagonals bisect each other. Okay, if this is your O, तो आपका AO OC के बराबर है. देन आपका DO जो है वो OB के बराबर है. फाइन. ओके. Yes, ma'am. थर्ड थिंग ये भी दिया है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल. फाइन. Yes, ma'am. तो इफ आई मार्क दीज एंगल्स 1 2 3 and 4, so all these angles are 90 degree. So angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4, which is 90 degree. So this information is already given, and yes, and the diagonals are equal also. Yes, ma'am. Mridula, are you there? I cannot hear your voice. Yes, Mridula. Yes, ma'am. Okay. Am I audible to you? Yes, ma'am. At that time, I can't open my mic, so I rejoined. All right, all right. So this much information is already given that the diagonals are equal, they bisect each other, and they bisect each other at right angle. Now what we have to show?
that ABCD is a square. ठीक है, अब स्क्वायर शो करना है तो क्या क्या शो करने की जरूरत है? फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Ma'am, that the sides are equal. All उससे sides are. उससे पहले क्या शो करेंगे? देखिए अभी सिर्फ क्वाड्रिलेटरल Ma'am, it is दिया a है. parallelogram. एग्जैक्टली. Ma'am, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इट इज अ पैरेललोग्राम. ओके, ये प्रूव करेंगे. ये मैं एडिशनल लिख देती हूँ ताकि आपको पता हो कि लाइक व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, राइट? सेकंड स्टेप, अब पैरेललोग्राम शो हो गया, फिर क्या शो करना है? Ma'am, sides are equal. एग्जैक्टली, ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, तो अब तो ये रोम्बस भी हो सकता है. व्हाट इज द थर्ड इंफॉर्मेशन यू हैव टू शो? Ma'am, Third. one corner is 180 degree. Exactly, one corner angle is 90 degree. See, this is very important. If you understand these things, a question will be very easy because you know what you are doing, right? Yes, ma'am. Okay, so basically this much you have to, these 3 points you have to prove. Okay, let's start the proof. देखिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइड्स को इक्वल दिखाते हैं, ठीक है? साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं. अगर हम लुक हियर, अगर हम AB को CD के इक्वल दिखाना चाहते हैं, CB के, फाइन, Yes, ma'am. ठीक है, तो हमें एक ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा और एक ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, राइट? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं ताकि हम CPCT से AB को CB के इक्वल प्रूव कर सकें. सो इन ट्राइंगल AOB and triangle COB, right? Yes, ma'am. Okay. Tell me what information you have here. Ma'am, AO is equal to OC. Very good. AO is equal to OC. Why? This is given. And Okay. ma'am, OB is common. OB is common. Yes, Mridula, tell me the third one. See, I'm taking this triangle and this triangle. So what is the third information you have here? Ma'am, Mridula will say. Ma'am, AC is equal to BD. No, I'm taking only this much triangle. Ma'am. Okay. This much. So AC तो complete side है. इस side ये तो सिर्फ AO है इसकी side. Ma'am, Right? angle 1 is equal to angle 2. Very good. So this one angle is already given. Okay, given 90 degree. फाइन, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया? ये एक एंगल है, दो साइड है, तो SAS क्राइटेरिया हो गया, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, Ma'am. सो therefore the triangle AOB is congruent to triangle COB, okay, by SAS criteria. ठीक है, तो अब CPCT से दोनों की साइड्स इक्वल हो जाएंगी. बाय CPCT AB is equal to CB. फाइन. Yes, ma'am. CB or we can write it BC, वो थोड़ा देखने में सही लगता है, doesn't matter. So let this my equation number 1 because I'm going to use it, right? Yes, ma'am. तो अब हम देखिए AB को, ये साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दिया. अगर हम इसी तरह से ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, I mean this one and this one, तो हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव हो जाएगी ना? Exactly same way. Yes. Yes. देखिए वही एग्जैक्टली सेम करना है. AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा. इसमें ये वाली साइड कॉमन आ जाएगी, ये वाली एंगल 3 और एंगल 4 ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, Yes, ma'am. दिस एंड दिस. तो CPCT से AD CD के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? तो ये मैं नहीं कर रही हूँ. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, आई कैन राइट सिमिलरली ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COD. Is this fine? Yes. Yes, ma'am. Okay. If you want to write the 3 steps, you can write. ये इसी तरह से तीनों लिखने हैं.
Then again by CPCT, therefore by CPCT, AD is equal to CD. तो ये सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, ठीक है। ओके अब देखिए, अब हमको दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। एक इसमें हम ले सकते हैं BOC, अगर हम लें एक CD अगर हमको दिखाना है, can we take opposite triangles? Wait, let me draw the figure here because वो ऊपर चला गया है। So this is my square, again I'm drawing one square here, fine। अभी हमने square prove नहीं किया है, but this is the figure I have। So A, B, C, D, fine, this is how I marked it, and this was my angle 1, 2, 3 and 4, fine। तो okay, now look here carefully। अगर हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए थे, ठीक है, तो हमारी ये वाली जो साइड थी AB, ये CB के बराबर आ गया था, फाइन। ऐसे ही Yes. जब हमने ये एंगल जिसमें एंगल 3 और 4 है, जब ये वाले दोनों ट्राइंगल्स लिए थे तो हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई थी, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे आमने सामने वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं ताकि हमारी लाइक अगर हम एक ये ट्राइंगल ले लें और एक ये ट्राइंगल ले लेंगे तो हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी ना CPCT से। Yes, ma'am. यस, तो अब की बार हम ऐसे ले लेते हैं। देन टेक थर्ड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल एक हम लेते हैं AOB एंड ट्राइंगल DOC, sorry COD। Is this fine? Yes, ma'am. ओके सी मैंने DOC इसलिए नहीं लिया है बिकॉज जो साइड AO है, AO वो इसके ये वाली साइड के बराबर है CO के। इज दिस फाइन? इज द पॉइंट क्लियर? बिकॉज इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के बराबर है, तो इसलिए इफ आई एम स्टार्टिंग दिस फ्रॉम A आई हैव टू स्टार्ट दिस फ्रॉम C, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन AOB एंड COD। तो इसमें मेरे पास क्या है, इट्स ऑलरेडी गिवन दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो AO इज इक्वल टू OC, दिस इज ऑलरेडी गिवन, राइट? यस मृदुला, टेल मी वन मोर थिंग, व्हाट इज गिवन? See, use the other diagonal. Ma'am, AB is equal to BC. No, Mridula, try to understand which triangles I'm taking. See, Ma'am, I've AB is taken equal to this. CD. Wait, AB is not equal to CD. ये तो हम प्रूफ करना चाहते हैं CPCT से, right? Yes, ma'am. इसीलिए हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं ताकि हम इन दोनों साइड को भी इक्वल दिखा सकें। Now in this triangle, I have taken one information which is already given that this diagonal AC इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसी तरह से डायगोनल BD भी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, और ये इस ट्राइंगल की साइड हो गई और ये वाली इस ट्राइंगल की साइड हो गई, isn't it? So can I write BO is equal to OD? Can I write it? It's already given, Mridula. Why are you not speaking? Yes, ma'am. Yes. Okay, now tell me the third point. What I can use? Hamna, tell me. Ma'am, angle 3 is equal to angle 1. Very good. Angle 1 is equal to angle 3. All 90 degree given to you. Okay, it's all also given. So which criteria? By SAS criteria, this triangle AOB is now congruent to triangle COD, right? By Yes. SAS. And similarly, therefore by CPCT, this time AB is equal to CD. This is my equation number 3.
right? Now look, see carefully. अच्छा, इतना लिखा आप लोगों ने? Okay, Yes, ma'am. I'll give you time to write. अभी समझिए. Now look carefully what I'm trying to write. Now from equation 1, 2 and 3. From equation 1, 2 and 3. Okay, if I combine all the equation. Okay, I start with equation number 1. So what does it say? That AB is equal to BC, right? Yes, ma'am. Okay. Now from third you can see AB is also equal to CD, right? So can I write here is equal to CD? Because Yes, okay. Now use the second. Now CD is equal to AD. So can I combine them like this? yes, ma'am. Any problem, Mridula? No, ma'am. Yes. So अब ये चारों साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, अब चारों साइड्स इक्वल आ गई है। तो ये क्या प्रूव हुआ? दैट इट इज अ पैरेललोग्राम? यस? No, ma'am, it's a square. नहीं, अभी क्योंकि हमने कॉर्नर एंगल को 90 डिग्री नहीं प्रूव किया है, तो अभी तो स्क्वायर नहीं हुआ। Ma'am, that it is a rhombus. यस, इट इज अ रोम्बस। अभी ये इतना प्रूव हुआ है क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इट इज अ रोम्बस। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, इतना प्रूव हो गया। अब अगर हम एक कॉर्नर एंगल को 90 डिग्री दिखा देंगे तब ये एक स्क्वायर प्रूव होगा, राइट? चलिए अब फिर से समझिए क्वेश्चन को। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं फिर से फिगर ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको क्लियर लगे। यस, नाउ मृदुला एंड हमना सी हियर। देखिए अब हमने देखो, जब हमको साइड्स को इक्वल दिखाना होता है तब हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। जैसे ये वाली साइड किस ट्राइंगल का पार्ट थी? इस ट्राइंगल का पार्ट थी, राइट? अब अगर हमको इस वाली साइड को ए बी को बी सी के बराबर दिखाना था तो हमने एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया था और एक ये वाला ले लिया था, ठीक है? Yes, ma'am. सो अगर हम देखिए मृदुला लुक हियर, जाओ, अगर हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया तो सीपीसीटी से ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव हो जाएगी, राइट? ऐसे ही अगर हम ये ऑपोजिट वाला और ये ऑपोजिट वाला ले लेंगे तब ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो पहले हमने ये किया था क्योंकि हमको चारों बाहर वाली साइड्स को इक्वल प्रूव करना था। नाउ दिस टाइम वी वांट टू प्रूव कॉर्नर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कॉर्नर एंगल तो ये कंप्लीट एंगल है ना, दिस इज कंप्लीट एंगल ए, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये पूरा का पूरा एंगल एक किस ट्राइंगल का पार्ट बन सकता है? टेल मी मृदुला। Ma'am, triangle DAB. एग्जैक्टली तो इसलिए मेरे को अब की बार ये बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल डीएबी। और अगर इधर ये लेंगे तो उधर क्या लेंगे दूसरी साइड पर? ओके, कैन आई टेक वन ट्राइंगल एबीसी? फाइन। Yes, एंड ma'am. ओके, एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो इधर से कैसे लिखेंगे? बी ए डी। यस, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके, चलो अब बताओ फटाफट इसमें क्या क्या है। Ma'am, AD is equal to BC. यस, इट इज गिवन दैट द डायगोनल्स आर इक्वल। एडी, अच्छा ए पहले ट्राइंगल ए बी सी है तो इसका पार्ट जो है एसी वाली साइड है, राइट? Yes, ma'am. AC is equal to BD. Fine. First. Second, tell me. There is one common side here. Ma'am, AB. Exactly. AB is equal to AB because it is a part of both. This is common. Okay. Third. अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है ना that the all sides are equal. Yes, ma'am. Ma'am, AD is equal to BC. Yes. So पहले हमने क्योंकि ट्राइंगल ABC लिखा है तो उसकी साइड क्या है? BC है।
और इसके साइड होगी AD, राइट? प्रूव। ओके, तो ये बन गया S क्राइटेरिया. So triangle ABC is congruent. Hmm. Ma'am, in the first, ma'am, AC is equal to PD. Ma'am, it will be given. Oh, sorry, मैंने लिखा yes, given ही बोला था, but I wrote it wrong. Sorry. It's given, yeah. Diagonals are equal. तो चलिए ये congruent हो गया, ठीक है? Then by CPCT. तो अब एंगल ओके, इस ABC ट्राइंगल में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल B, राइट? एंड BAD ट्राइंगल में एंगल A. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, राइट? Yes, ma'am. ओके, चलिए इक्वल तो प्रूव हो गए, लेकिन अब हमको 90 डिग्री दिखाना है. तो 90 डिग्री जब भी दिखाना होता है, एक ही लॉजिक है जो हमेशा आप लोग याद रखेंगे. क्या याद रखेंगे? पैरेलल लाइंस के बीच में को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. दिस यू नो? Yes, ma'am. यस. Yes, ओके, ma'am. फाइन. तो यही यहाँ पे यूज करना है. नाउ सिंस इट इज अ रोम्बस, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. सिंस इट इज, इट की जगह लिखिए ABCD. सिंस ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड. So therefore opposite sides are parallel, right? Therefore your side AD is parallel to side BC. Fine. Yes, ma'am. Okay, and therefore because क्योंकि lines parallel है, तो angle A plus angle B का sum कितना है? 180 degree. Why? They are co-interior angles. Co-interior angles are supplementary. This you have already studied. Yes? Any Yes, problem? ma'am. No, ma'am. ठीक है, ओके. तो ओके, अब दोनों एंगल्स बराबर है, तो बी की जगह भी एंगल ए ही लिख देते हैं. तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. फाइन. Yes, ma'am. चलो, अब क्या हो गया? चारों साइड्स भी इक्वल प्रूव हो गई, कॉर्नर एंगल भी इक्वल प्रूव हो गया, तो ये स्क्वायर बन गया. तो अब एक लास्ट में लाइन लिख दीजिए. सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल and one corner angle is 90 degree. Therefore, ABCD is a square. Right? This is an interesting question. I mean, from examination point of view, it's good. ये क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं एक साथ. Should I scroll it या आपने लिख लिया है? No, ma'am. So have you written? No, ma'am. तो scroll करना है या नहीं, ये बताइए. No, ma'am. Okay. So is the question clear? Yes, ma'am. All right, let's move to question number 6 now. Okay, so the figure is already given that diagonal AC of a parallelogram, okay, it's already given that it is a parallelogram, bisect angle A. So that means these two angles are equal. So you have to show that it bisects C also. Okay, so if my angle is, this is my angle 1, this is my angle 2, and if I give some names here, like 3 and 4, okay. तो और एंगल 1 एंगल 2 इक्वल दिया है, आपको दिखाना है कि एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर है. फाइन. Yes, ma'am. एंड नेक्स्ट दैट ABCD इज अ रोम्बस. अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या दिखाना है? सी इट्स ऑलरेडी गिवन, इट्स अ पैरेललोग्राम. तो क्या दिखाना होगा? Ma'am, diagonals are equal. रोम्बस, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस? Ma'am, sides are equal. एग्जैक्टली, ऑल साइड्स आर इक्वल. सिर्फ इतना ही दिखाना है, ठीक है. ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, साइड्स को सबको इक्वल दिखा देंगे तो ये रोम्बस हो जाएगा, राइट?
Okay, let's do it. Let me use my sheet here. Okay, question number 6. Let me make a figure. Ma'am, Yes, ma'am, can you scroll a little bit? Oh, ma'am, I have not noted the last line. wait. I'm done. Okay. Are you guys in the same school or different schools? All three of you. I'm different. Ma'am, different. Okay. Yes. Okay. Let's do question number 6. Okay. This was the figure given to you. Sorry, such a bad figure I have drawn. Anyway, this is sorry, this is 1 and this is 2, and this I marked 3 and this I marked 4. Fine. So A, B, C, and D. First of all, write what is given to you. It is already given that angle 1 is equal to angle 2, right? Okay. And what is given? ABCD is a parallelogram. This is already given. Fine. Now, what you have to prove? That जो ये डायगोनल AC है, ये एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है. ये प्रूव करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. That means angle 3 is equal to angle 4. This you have to prove. Fine. First and second आपको प्रूव करना है that ABCD is a rhombus. Okay, let's do it. तो इसमें यहाँ ब्रैकेट में लिख लो कि all sides are equal. ये प्रूव करना है. This is, I mean, for your understanding, I'm writing all sides are equal. This you have to prove. Let's do the proof now. तो कैसे करेंगे इसको? Any idea? चलो कौन बताएगा? Yes. Okay, come on. See, it's a very easy question, not a very tough one. Yes, Hamna, are you there? Yes, ma'am. Okay. See, it's already given that angle 1 is equal to angle 2. ठीक है? ये given है. This is equation number 1. अब देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी होती, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, प्लीज कीप दिस इन माइंड. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो लॉजिक ये होता है कि जो आपको गिवन है ना, उसके बारे में सोचना शुरू करिए. ठीक है? दिस इज वेरी, इट्स ऑलरेडी गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम. कैन यू सी हियर? यस मृदुला. Yes, ma'am. सो मेक यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. आपको उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, जरूरी करना है क्वेश्चन में, वट एवर इज गिवन टू यू. ठीक है? तो वो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा. अब ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसका मतलब कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. फाइन. अब Yes, ऐसे देखिए, अगर ये वाली साइड CD और ये वाली साइड AB आपस में पैरेलल है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. yes, ma'am. होगा. तो कैन आई राइट सिंस AB is parallel to CD, so angle 4 is equal to angle 2. Can I write it like this? Yes, ma'am. इक्वेशन नंबर 2. फाइन. अब ये वाली साइड भी पैरेलल है, ये भी आप इस तरह से साइड में बना सकते हैं अपने. ठीक है? ताकि आपको ध्यान रहे. और अब फिर से ये वाला ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल भी होगा. यस.
Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वाला एंगल है 3 और ये वाला एंगल है 1. दिस वाज योर 4 एंड दिस वाज योर 2. तो अगेन सिंस अब आपकी लाइन ए डी पैरेलल है बीसी के, therefore angle 1 is equal to angle 3. Yes, 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 ma'am. इक्वेशन नंबर 3. अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख लेना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, यहाँ पे भी दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब हमको दिखाना क्या था, दैट एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, ये दिखाना है ना, ये दोनों एंगल बराबर है. तो yes, अब ma'am. वो इक्वेशन देखिए जिसमें 3 और 4 आ रहा हो. अच्छा, ये कंबाइन करना पड़ेगा. अच्छा, अब इसमें से ऐसे देखिए, इसको तीनों से निकल के आ तो रहा है. अच्छा देखो, एंगल 3 को 4 के बराबर दिखाना है. अब यहाँ से 2 और 3 में देखो, एंगल 3 1 के बराबर है. ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन से अच्छा ठीक है, मैं इसको कंबाइन करती हूँ पहले, देन यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3. फाइन, राइट. चलो, अब इक्वेशन 1 लिखो, वो क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, फाइन. अब इक्वेशन 2 में जो एंगल 2 है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के. कैन यू सी? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू एंगल 4. वेट, माय पेन स्टॉप्ड. ओके, तो ये एंगल 4 के बराबर आ गया. जस्ट अ मिनट, समथिंग रॉन्ग विद माय पेन. ठीक है, अब ये एंगल 4 के बराबर आ गया. और इक्वेशन 3 से देखिए, एंगल 1 किसके भी बराबर है, 3 के भी बराबर है. ठीक है, तो Yes, ma'am. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3. एनी प्रॉब्लम? Yes, ma'am. तो मैंने इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख दिया है. ठीक है, एनी प्रॉब्लम हियर? No, ma'am. तो यहाँ से आपका क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपको चाहिए था. एंड देयरफॉर डायगोनल AC also bisect angle C. First point is proved. ठीक है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हम्म. चलो, अब हमको दिखाना है कि चारों साइड्स इक्वल है. अब उसको कैसे करेंगे? अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, ये वाला. ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं. लेट दिस योर इक्वेशन नंबर 5 और 4. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है. फाइन. Yes, ma'am. ओके, चलिए, अब हम पहले कोई दो साइड दिखाने की कोशिश करते हैं. हम ए बी को बी सी के इक्वल दिखाते हैं. कैसे दिखाएंगे? अगर देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन 4 ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, फिर लिख लेना. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 सारे एंगल एक दूसरे के बराबर आ गए ना, तो इसका मतलब कि एंगल 2 जो है, ये वाला एंगल 3 के भी बराबर आ गया. राइट. Yes, ma'am. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना, ABC. Yes, ma'am. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि दोनों एंगल जो है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, देयरफॉर साइड्स आर आल्सो इक्वल. Yes, ma'am. यस, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना ये, sides opposite two equal angles are equal, isn't it? Yes, ma'am. तो यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज हो गई. ठीक है, तो ए बी बी सी के बराबर आ गया. अब इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5. तो अब दो साइड के बीच में तो रिलेशन आ गया है. अब बाकी साइड्स के बीच में भी रिलेशन चाहिए, ताकि हम उनको कंबाइन करके चारों साइड्स को बराबर बना सके. अब वो कैसे करेंगे? चलो, अब क्योंकि इट्स ऑलरेडी गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, साइड्स का क्या रिलेशन होता है, टेल मी. पैरेललोग्राम का कोई थ्योरम यूज करो जिसमें साइड्स के बारे में बात की गई हो.
Opposite sides are equal, isn't it? तुम लोग भूल गए हो, मैं तुमको फर्स्ट क्लास से पढ़ा रही हूँ. यस हम ना. Yes, ma'am. अब ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बताओ. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये ABCD है. ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स का मतलब AB किसके बराबर है, CD के. ठीक है, और BC किसके बराबर है, AD के. तो इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं. और व्हाट इज द थ्योरम आई हैव यूज्ड, opposite sides of a parallelogram are equal. Fine. Yes. चलो अब इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 को कंबाइन करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7. ठीक है, चलो 5 में क्या बोला है, ए बी बी सी के इक्वल है. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी. फाइन. अब 6 में क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी के इक्वल है, तो यहाँ पे सी डी लिख देते हैं बिकॉज ए बी ऑलरेडी है. और 7th में बोल रहा है कि बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, तो बी सी यहाँ ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे ए डी के इक्वल लिख देते हैं. तो चारों साइड्स इक्वल आ गई. Yes, ma'am. ठीक है, एंड देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस. तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी था, तो चारों साइड्स इक्वल आ गया. देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस. इज द क्वेश्चन क्लियर, आई मीन एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. ठीक है, इसको लिखो, थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ. जस्ट लेट मी नो अगर स्क्रॉल करना है तो. Ma'am, scroll it, ma'am. ठीक है, मैं ओके. प्लीज मार्क योर एंगल्स प्रॉपरली. ये एंगल 3 था और ये 4 है. ठीक है, प्लीज ये थ्योरम्स जो है ना ये ठीक से लिखना. दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. फाइन, वरना आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते हैं. शुड आई स्क्रॉल? Yes, ma'am. ओके,
Yeah, have you written? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. All right. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, they take time, but they are interesting questions. All right. So 7th question. ABCD is a rhombus. So it's already given. 7th ही करना है ना हमको. Okay. ABCD is a rhombus. It's already given. अब rhombus given है तो क्या क्या information given है बताओ. Ma'am, that all sides are equal. Yes, and all sides are parallel also. Right? Right? ठीक है. Equal भी है, parallel भी है. Show that the diagonal AC bisects angle A as well as angle C. एंड डायगोनल BD जो है वो ठीक है. ये दिखाना है कि डायगोनल्स जो है वो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके. So let's draw a rhombus first of all. Question number 7. So let us draw a rhombus because it's already given. It's a rhombus ABCD. तो हम एक rhombus draw कर लेते हैं. ठीक है. ABCD. ठीक है. अब इसका एक डायगोनल AC है और इसका एक डायगोनल BD है. This is your figure. Now, what is given to you? First of all, write that ABCD is a rhombus. तो अब ब्रैकेट में लिखो इसका क्या क्या मतलब है. That your side AB is parallel to side CD, fine, and side AD is parallel to side BC. पहली चीज ये given है. दूसरा इसका मतलब given है कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So this much information you already know. Next, to show. अब शो करना है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है. अगर ये वाला लेट मी मार्क सम एंगल्स हियर. दिस इज योर एंगल 1, दिस इज योर एंगल 2. तो हमको ये दिखाना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है. फाइन. Yes, ma'am. तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है एंड ये दिखाना है कि ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. तो अगर इसको 3 और 4 मान लेते हैं इधर, ये 3 और 4 है, तो ये भी दिखाना है दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. फर्स्ट थिंग. तो डायगोनल AC के बारे में ये दिखाना है और ऐसे ही डायगोनल BD के बारे में दिखाना है कि ये एंगल B और D को बाइसेक्ट करता है. तो अगर यहाँ पर कुछ एंगल्स फिर से 4 और 5 मान लें और इधर मान लेते हैं 6 and 7. प्लीज मार्क ऑल द एंगल्स वेरी केयरफुली. तो हमको ये भी दिखाना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है and angle 6 is equal to angle 7. So this basically we have to prove. Ma'am, you marked 4 2 times. ओके. 4 हो गया था तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा. I'm sorry. फिर ये 7 और इसको 8 कर लेते हैं. Is this fine? Yes, ma'am. ओके. चलिए अब पहली चीज देखिए, एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर दिखाना है. यस. और 3 और 4 को बराबर दिखाना है. तो हम इट्स वेरी इजी. देखिए अगर इसको फिगर को ऐसे ब्रेक करूं मैं, एक ये वाला ट्राइंगल ले लूं नीचे वाला, ठीक है, और एक ऐसे ही ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल अगर ले लिया जाए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग हियर. यस मृदुला, दिस इज Yes, योर ma'am. ABC एंड दिस इज योर ADC. ठीक है. अब आपको दिखाना है कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो CPCT से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. यस. Ma'am. Yes, ma'am. तो ठीक है, यही दो ट्राइंगल ले लेते हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. तो इन ट्राइंगल अब इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ABC एंड, अब बताओ मेरे को सेकंड ट्राइंगल कैसे लिखना पड़ेगा. Ma'am, CDA. नो, देखो ये ही इसमें सोचने का है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर मैंने CDA लिखा तो उससे क्या होगा, हम ना लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन. अगर मैंने इसको लिया ABC, ठीक है, और इसको लिया CDA,
तो उससे ये हो जाएगा कि जो इसका एंगल ए है वो इसके इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। यस, फाइन। Yes, ma'am. Yes, बट ma'am. हमारा देखो फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 एक ही कॉर्नर पे आ रहा है, ठीक है। Yes, तो इसलिए हम इसको सी डी ए नहीं लेंगे, हम इसको भी ए से ही स्टार्ट करेंगे, इसको ए डी सी लेंगे, ताकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल आ सके। इज दिस क्लियर? yes, ma'am. तो ट्राइंगल का नाम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यू हैव टू नेम इट वेरी केयरफुली। तो अगर ए बी सी दिया है तो इधर ए डी और सी लेंगे, ठीक। चलो अब बताओ जल्दी इसमें क्या क्या है। एक साइड तो कॉमन है, दिख रही है बीच में। यस Ma'am, AC. यस, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। और बताइए। अब ये गिवन है ना ऑलरेडी, रोम्बस है नहीं गिवन। यूज द गिवन इंफॉर्मेशन। Ma'am, the diagonals are equal. साइड्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स कहाँ, डायगोनल्स इक्वल नहीं दिए हैं। सी इतना दिया है कि ये एक रोम्बस है, राइट। तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी तो नहीं है, मतलब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी में क्या याद रखना है कि वो एक पैरेललोग्राम होता है और उसकी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, इतना ही याद रखना है ना। तो चारों साइड्स इक्वल हैं तो उसका यूज करो। बताओ इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या आ सकता है। Ma'am, AB is equal to CD. ए बी इज इक्वल टू सी डी, वेरी गुड, ठीक है। और बताइए। ए बी इज इक्वल टू सी डी नहीं लेंगे इसमें, अगेन यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक। देखिए मैंने ये वाला ट्राइंगल भी ए से शुरू किया, ठीक है। अगर मैं इसकी ये वाली साइड लूंगी तो मुझे इसकी ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, isn't it? Yes, ma'am. यस। तो सिर्फ Yes, ma'am. लिखने का ही इसमें प्रॉपर है, अगर इसका ए बी लिखा है तो इसका ए डी लिखेंगे इधर, ठीक है। और बताओ, अब इसका अगर मैंने बी सी लिया तो इसका कौन सा साइड लेना पड़ेगा? Ma'am, CD. सी डी, यस। सो यू हैव टू राइट इट केयरफुली। ये क्या हो गया, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ओके, तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ ये, एस एस एस। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। और सीपीसीटी से एंगल्स आपके इक्वल आ गए। बाय सीपीसीटी you can write, sorry my pen sometimes just stop writing, I don't know why. So by CPCT your angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Yes, any problem? This was No. your 1, this was 2, this was 3, this was 4. तो 1 2 के बराबर आ गया और 3 4 के बराबर आ गया। तो इसको हम लाइन में लिख सकते हैं, therefore diagonal, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, therefore diagonal AC bisects angle A and also angle C. Yes? Yes, ma'am. ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली सेम वे आपको ये भी दिखाना है कि जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, पर उसमें हम ट्राइंगल डिफरेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, चलो सिमिलरली, और इसको सिमिलरली करके भी किया जा सकता है, बट एनीवे लेट अस जस्ट रिपीट इट। चलिए ठीक है। तो फिर से मैं स्क्वायर, आप देखिए अपना ध्यान से। अब अगर ये वाला डायगोनल आपको दिखाना है BD, ठीक है, ये दिखाना है कि एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एंगल 5 को 6 के बराबर दिखाना है और एंगल 7 को 8 के बराबर दिखाना है, ठीक है, यही करना है ना। Yes, ma'am. Yes, तो आपको ma'am. कौन से ट्राइंगल्स लेंगे बताइए। Ma'am, angle BCD and BAD. एक मिनट, मेरा पेन, सॉरी, आई थिंक आई हैव टू चेंज माय पेन। हाँ, which were you saying, sorry? Ma'am, triangle BAD and BCD. BAD and BCD, yes। तो एक ही पॉइंट से हम शुरू करेंगे।
Yes, so BAD you are saying, and you are saying BC and D. हाँ ठीक है, ये ले सकता है, फाइन। चलिए, चलो इसको जल्दी से करने की कोशिश करो खुद से। थोड़ा मैं एक ही डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ इस बार, ठीक है, दूसरा आप ऑलरेडी बना चुके हैं, जस्ट फिगर को थोड़ा क्लीन रखने के लिए। So this was my angle 5, this is 6, and this is 7, and this is 8. ठीक है ये Yes, A, ma'am. B, C and D. ठीक है, चलो ट्राइंगल लेते हैं। In triangle, what she said, BAD and triangle BCD. Fine. चलो बताओ जल्दी क्या क्या है इसके अंदर। Ma'am, DB is common. So BD is equal to BD. This is common. Yes, Mridula. Next. Ma'am, AB is equal to DC. AB is equal to BC. DC. Yes. DC. Oh. No, फिर से आप वही गलत बता रहे हो जैसे बताया था। Ma'am, DC. BC, यस। अगर देखो B से दोनों को शुरू किया है ना, तो अगर इसका ये वाली साइड लेंगे तो फिर इसकी ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, राइट? Yes, ma'am. यस, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम B। ठीक है, अब दूसरी साइड बताओ। Ma'am, DC is equal to AD. अच्छा, पहले ट्राइंगल लिखा है BAD, तो BAD में AD आ रहा है, ठीक है, और बाद में लिखा है BCD, तो उसमें आ रहा है CD। थोड़ा सा लिखने में ध्यान से लिखना है, ठीक है। हम लिख सकते हैं CD को लेफ्ट में, बट अब ये लेफ्ट, इस वाले ट्राइंगल की सारी चीजें लेफ्ट साइड में लिखते हैं और इस वाले ट्राइंगल की सारी चीजें राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा लिखने का तरीका ऐसे ही रखना है। चलो लिखो, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। फाइन, तो फिर से बस SSS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्राइंगल BAD is congruent to triangle BCD by SSS criteria and by CBCD। हमको यही प्रूव करना था that angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8। फाइन, Yes, ma'am. और बस वो फिर से एक लाइन लिख दीजिए। therefore diagonal BD bisects angle B as well as angle D। Okay, my pen is not working, sorry, tomorrow I'll get a new one। Okay, what's writing, I think, yes, so therefore diagonal BD bisects angle B as well as angle D। Fine। Yes, I think this much is enough for today, Yes, ma'am. because next question is also okay. Quickly we can do the next one, or shall we stop? Okay, have you written? Yes, ma'am. अच्छा, 8 तो हो गया हमारा ना, 9th हमको करना। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 8 किया है ना? No, ma'am, 7. 7th किया, ओके। एट क्वेश्चन इज अ शॉर्ट वन, इसको यहीं पे कर लेते हैं जल्दी से, then I'll end the class। चलो, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ABCD, A B C and D, ठीक है। इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है ऊपर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और C को, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल 1 2 के बराबर ऑलरेडी गिवन है और 3 4 के बराबर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। शो दैट ABCD इज स्क्वायर और डायगोनल BD बाइसेक्ट्स, ठीक है। व्हाट इज गिवन टू यू?
ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि AB इक्वल दिया है CD के एंड मैम AD BC के, ठीक है? आई मीन दीज 2 पॉइंट्स दे आर ऑलरेडी गिवन। मैम AB is parallel to BC हाँ, and AD रेक्टेंगल is है parallel तो to BC. सी इट्स अंडरस्टूड कि ये पैरेललोग्राम है अगर रेक्टेंगल है तो, ठीक है? तो Yes, अभी ma'am. पैरेलल लिखना इतना जरूरी नहीं है बिकॉज इट्स अंडरस्टूड, लेकिन हाँ उसका एडिशनल ये है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है? और ये दिया है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 because it's given in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and angle 3 is equal to angle 4. So this is already given. All right. Yes, Now ma'am. what you have to show that first ABCD is a rhombus. Sorry, is a square. Okay. चलो अब इसको स्क्वायर भी दिखाना है, तो हमको ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल पता है बट चारों साइड्स इक्वल है ये दिखाना है। ऑल राइट, तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं जो गिवन है, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है? ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, सो कैसे लिखेंगे नेक्स्ट वाले ट्राइंगल को? मृदुला टेल मी, अगर यहाँ पे ABC लिया है तो इसमें क्या लेंगे? Ma'am DCA. नो, देखो Ma'am ये CD. Ma'am CDA. नो, CDA अगर लेंगे ना तो एंगल 1 4 के बराबर हो जाएगा, इजंट इट? बट हमें दिया क्या है, एंगल 1 2 के बराबर दिया है, तो इसको भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ए से। AD. Ma'am ADC. एग्जैक्टली। सी प्लीज इस पॉइंट को समझिए आप दोनों, क्योंकि हमको एंगल 1 2 के इक्वल दिया है, ठीक है? अगर ऐसे दिया होता कि 1 4 के इक्वल है तब हम फ्लिप करके लेते हैं ट्राइंगल को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 और 2 बराबर दिया है और 3 और 4 बराबर दिया है तो हम बिल्कुल ऐसे ही लेंगे जैसे वो आपको पिक्चर में दिख रहा है। फाइन, Yes, ma'am. Yes. ओके। चलो तो इसमें दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, और एक साइड कॉमन है, कैन यू सी दैट AC इज इक्वल टू AC, ठीक है? Ma'am. तो ये कॉन्ग्रुएंट आ गए, ABC is congruent to triangle ADC. Which criteria? Ma'am ASA. ASA. Yes, 2 angles and 1 side. ठीक है, और by CPCT जो साइड्स हैं वो इक्वल आ गई, यानी कि AB इज इक्वल टू AD आ गया आपकी बार, राइट? देखो क्योंकि दोनों ट्राइंगल A से स्टार्ट हो रहे थे, लुक केयरफुली, तो इसकी अगर ये वाली साइड होगी तो इसकी ये वाली साइड होगी ना, ये वाली, राइट? Yes, ma'am. तो इसलिए AB AD के इक्वल आएगा आपकी बार, ठीक है? AB इज इक्वल टू AD आ गया, और ऐसे ही इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड बन जाएगी, राइट? तो BC इक्वल टू आ गया CD के। यस, इज द पॉइंट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब ये सब लिखने का है बस, और कुछ नहीं है। चलो अब इनको बस कंबाइन कर लेना है, चारों साइड्स को इक्वल दिखाना था। स्क्वायर का मतलब यही है ना कि चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है, फर्स्ट थिंग। अच्छा देखो, इसमें वन कॉर्नर एंगल 90 डिग्री इसलिए नहीं दिखाना है बिकॉज ये ऑलरेडी रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो आई फॉरगॉट टू राइट दैट इट इज आल्सो गिवन दैट वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, इजंट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए हमको ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ हमको साइड्स इक्वल दिखाना है, दैट इज सफिशिएंट। बिकॉज अगर हमको पैरेललोग्राम दिया होता तब हमको दिखाना पड़ता, राइट? सो दिस इज आल्सो गिवन टू यू दैट वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। ये सब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू, और आप फेयर में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो अब ये सारी इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। एक मेरे पास इक्वेशन ये आ गई CPCT से, एक ये आ गया, ठीक है? और इट्स अ रेक्टेंगल, तो ये ऑलरेडी गिवन था दैट AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ठीक है? ये सब गिवन था। अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं, चारों साइड इक्वल आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। चलो पहले 1 लिखो, व्हाट डज इट से दैट AB इज इक्वल टू AD, ठीक है? अब AD देखो किस में आ रहा है, थर्ड में, हियर, राइट? Yes, ma'am. तो यहाँ से AD किसके बराबर है, BC के, सो दिस इज इक्वल टू BC। अब BC किस में आ रहा है, सेकंड में, तो सेकंड में BC किसके बराबर है, CD के।
हो गई चारों साइड, ए बी Yes, ma'am. बी सी सी डी एंड ए डी। यस, इसको थोड़ा ठीक से करके आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ square. Fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second part में था that the diagonal bisect angle B and angle D. इसके लिए फिर से वैसे ही करना पड़ेगा आई थिंक। चलो, ए कैसे था मेरा फिगर, ए बी सी डी। तो अब दिखाना है कि जो ये वाला डायगोनल है बी डी, अब ये बी और डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो फिर से कुछ नेम्स दे देते हैं। अगर दिस इज माय एंगल 4 and 5 एंड दिस इज 6 and 7, ठीक है। तो अब हम यही दो ट्राइंगल ले लें अगर, राइट, और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और वहां से सीपीसीटी से एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे, राइट। Yes, ma'am. तो एक ट्राइंगल अगर हम इसको बी से शुरू करते हैं, अगर हम ऐसे लेते हैं, सी देखो 4 और 5 क्योंकि एक ही साइड है, कैन यू सी दैट। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल को अगर डी से स्टार्ट करूं तो मेरे को दूसरा भी डी से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो Yes, एक ma'am. मैंने ले लिया डी ए बी एंड ट्राइंगल डी सी बी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। चलो जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या है। अब एक साइड तो कॉमन है, ठीक है, Ma'am, बी D. डी, हाँ बी डी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज कॉमन। जल्दी बताओ और क्या है। Ma'am. साइड्स अभी इक्वल दिखाई है ना सारी, उसको यूज कर लो। हाँ, Ma'am, BC is equal to A. वेट AB. वेट वेट, ये वाला ट्राइंगल देखो डी ए बी, ठीक है। अगर ये वाली साइड लेंगे तो इसमें कौन सी लेनी पड़ेगी। Ma'am, C. BC. नो, फिर अगेन यू आर रॉन्ग मृदुला। सी बोथ ट्राइंगल्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम डी, तो इसमें Ma'am, इधर मूव BC. करेंगे तो इसमें इधर मूव करेंगे, इजंट इट। तो ये Yes. वाली, हाँ, तो ये वाली साइड सी डी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और Ma'am, AB is equal to BC. एग्जैक्टली ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये हमने अभी प्रूव कर दिया है। चलो हो गया, बस एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट आ गया। सो ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी और सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 आ गया एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 आ गया। देयरफॉर अब लिख दो कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। Yes, fine. Yes, ma'am. Okay, so how many questions are remaining in this exercise? These questions take up time. Ma'am, 4 questions. 4 questions. I think in the next class we will finish this exercise. Fine. Yes, ma'am. Okay then, that's it for today. Thank you, ma'am.